Hello, children. Now we are discussing grade 7, chapter 10 reproduction in plants. Okay, so reproduction means generating the new ones or the young ones of its own kind. Okay, as you can see, if any individual or any organism has been extinct, it is because it does not have any single species of that. So for the continuation of the life, we are not able to see any of the dinosaurs because none of a single species is left. Yes, so for the continuation of the generation, we need the process of reproduction. If someone dies, its generation continues because of the young ones it has generated in its lifetime. Okay, so reproduction means generation of the young ones, and it why it is necessary? Because of the continuation of the life only continues because of the reproduction. Similar to any other processes that are continuing in our body, it is not for the survival. Means if anyone do not do reproduction in its lifetime, or any problem it is happening, it does not die. Means if your digestive system is not functioning properly, you may die. Your circulatory system, means the blood circulation, if it is does not continuing processing in a proper way, you may die. But if you have any problem related to reproduction, means you the person like salvation, if any taken the priest or who does not have any functioning of the reproductive system, they may not die. Okay, so it is not important for the survival, but for the continuation of the generation. Only the species which have the young ones generated for the next time, their life may be continued for the next generations. Okay, now reproduction in plants. If we talk about reproduction in plants, the reproductive part you have studied earlier, the two parts in the plants can generate the young ones. Okay, in the plants there are two parts by which they can generate the young ones. Means if the young one is generated from the flower, that is the reproductive part. If other than that, if the new plant is generated from the root, stem, leaf, these can be generated at the vegetative parts. Okay, so if the new ones is generated from a flower, it is the reproductive part. If it is generated, if it is generated from the root, stem, leaves, so these all are considered as the vegetative parts of the plant. Clear? So flower is the reproductive part of the plant, and vegetative क्या कहते हैं, stem, roots, leaves are the vegetative parts of the plant. Okay, now if we talk about the kind of reproduction, there are two types of reproduction: asexual reproduction and sexual reproduction. What do you mean by asexual reproduction? Asexual reproduction means only one parent is required, only one parent is required to produce the young one. Okay, so that single parent can generate the new one from its own body. Sexual reproduction means two parents are required, it required two parents. Okay, so for the generation of the new one, it requires a male and a female that involved and produce a new offspring. Okay, now we continue to the asexual reproduction. Asexual reproduction, as already told you, it requires only one parent. Now the first method that is discussed is fragmentation. Now what is fragmentation? You can see from the term only, fragmentation means the fragment. So fragment means किसी चीज का पीस, फ्रेगमेंट. सो द प्रोसेस इन विच द पेरेंट ब्रेक डाउन इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, मीन्स अपने फ्रेगमेंट्स बना लेता है. एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी. एल्गी कहाँ दिखती है? जहाँ पे पानी काई जमी रहती है ग्रीन ग्रीन सी, सो उसको हम क्या कहते हैं? एल्गी. सो इन द एल्गीज अ प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस, मीन्स द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू two, and these two individual generate as their new individual. Further, these two will be divided again into new fragments, and they will continue as a single individuals.
Clear? So all these are continuing as a single individual. The parents divide into further fragments. Okay. Now the next method is budding. Budding you termed as bud. Budding means a bud is generated. Now what is bud? Bud means a bulb like projection. Bulb like projection means, okay, so if you take about, you have studied the chapter nutrition in animals, and in nutrition in animal you studied about a hydra. Yes, you studied about hydra. Okay, so it generated a bud from its body, and this detaches from it and grows into an individual plant. Yes. So similarly, this was an example of an animal. In plants also, a bud-like structure generates from the body. Example in yeast. Yeast is a plant that is being given example. Okay. So this is your structure of your yeast. Yeast, clear? Now this is the parent body. It has generated a bud into it. Okay. Now how the bud is generated? First, the parent body generates the cytoplasm, then the nucleus is being transferred to the nucleus, get stressed, and they divide into two. Clear? So this is the parent body and this is the new individual. Again, this new individual can generate the bud from its body and generate the new one. Clear? So in yeast, a bud formation taking place. Bud means a bulb like structure generates from the parent's body and it develops into a new individual. Clear? Next, spore formation. Spore formation, the term itself says spore ka formation. So spore formation means uh, formation of the spore. And what are spore? Spore is a tiny spherical unicellular protected by thick walls. Okay, so spores are what? Have you seen okay, example like this. See, this is your bread. In generally you have seen कोई पुरानी bread होती है उसमें फंगस लग जाती है. So this is what? The fungus itself is the spore formation. ये क्या है? आपके स्पोरेजियम है जिसके अंदर क्या है? आपके छोटे छोटे से आपके स्पोर्स हैं. क्लियर? So these spores, the sporidium burst out एंड व्हाट इट इज हैपनिंग, वो जितने भी स्पोर्स हैं वो जितनी दूर दूर स्प्रेड आउट होंगे वो क्या करेंगे? न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे. जितने स्पोर्स हैं दीज आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दैट कैन बी जनरेटेड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. क्लियर? सो स्पोर फॉर्मेशन. क्लियर? किसमें याद रहेगा? किसमें होती है? ब्रेड में. यू कैन राइट द ब्रेड मोल्ड फंगसेस ऑल दीज जनरेटेड द reproduced by the help of the spore formation. Now next is vegetative reproduction. In the starting I told you the plants can reproduce by two parts. If the flower is generating the new individual, it is the reproductive part. If the new individual is generated from stem, from root, from leaves, these all are known as vegetative parts of the plant. And if the individual is generated by these young ones, these are known as vegetative reproduction. Clear? When the young one are produced from the vegetative parts of the mother plant such as roots, stem, these without the individual of any reproductive, this is known as vegetative reproduction. Okay, now the first you can see the stem. In the stem tubers, stem tubers means example your potato are the stem tubers, means these are the stems which store the food. Now have you seen the eyes ऑन द पोटैटो? पोटैटो के ऊपर आप देखेंगे अगर बहुत थोड़े से पुराने हो जाते हैं उनके ऊपर आई लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर उस पर जनरेट हो जाता है. सो दीज बर्ड्स आर न्यू इंडिविजुअल इन इटसेल्फ. आपके पोटैटो में जितनी जगह आपके आई हो उनको कट करिए और उतने पीसेस को आप सॉइल में ग्रो करेंगे. every bud is generating a new plant. Okay, so every generated for these all the methods. आपकी ये जितने भी स्टेम क्या कहते हैं ट्यूबर्स हैं, फिर जब आपके ये अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक बल्ब ऑफ द अनियंस, इन सब के मैंने एक आपका क्या कहते हैं प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे ही. यू कैन सी इट एंड सी ऑल द मेथड्स एग्जैक्टली ग्रोइंग. उसके वीडियोस बहुत अच्छे आपको एक्सप्लेन है जिसमें आप ये सारी चीज़ें
देख सकते हैं। ओके, सो इन द जिंजर ऑल्सो, जिंजर के भी आप उसमें जिसमें आई निकली होती है उसको अलग अलग जगह पे आप अगर ग्रो कर देंगे, दैट विल जनरेट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। सिमिलरली विद द अनियंस, अनियंस के आप जितने पीसेस करिए उन पीसेस को ग्रो कर दीजिए, एवरी इंडिविजुअल विल ग्रो एज अ न्यू अनियन प्लांट। क्लियर। नेक्स्ट, लियो रनर्स। रनर्स क्या होते हैं आपके स्ट्रॉबेरी प्लांट में, जैसे ये आपकी स्टेम जा रही है, स्टेम को आप जितनी जगह पे नीचे सॉइल के अंदर बरी कर देंगे उतनी जगह पे वो रूट्स को ग्रो करने लगेगा। सो दिस वाज द इंडिविजुअल पेरेंट प्लांट। इसकी जितनी स्टेम्स हुई हमने उनको क्या किया, नीचे की तरफ उनको सॉइल में डिग कर दिया, तो ये क्या हो गया, उतनी जगह पे वो न्यू इंडिविजुअल की तरह आपके इतने सारे एक सिंगल प्लांट से आपके 3 प्लांट्स जनरेट हो गए। क्लियर। नेक्स्ट, सिमिलरली विद द ब्रायोफाइलम, बायोफाइलम की जो लीव्स की एजेस होती हैं इसमें आपके क्या होते हैं, न्यू आपके क्या कहते हैं प्लांट्स होते हैं। इनको आप कहीं पे भी जाके ग्रो कर देंगे, जो बर्ड्स उनकी मार्जिन्स पे निकलती हैं, द बर्ड्स इन द मार्जिन्स, तो आप ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे न्यू इंडिविजुअल में आपके जनरेट हो जाएंगे। सिमिलरली विद द मनी प्लांट, मनी प्लांट की हम क्या करते हैं, लाके की स्टेम ग्रो कर देते हैं एंड इट स्टार्ट ग्रोइंग एज अ न्यू इंडिविजुअल। एलोवेरा की स्टेम आप लगा देंगे तो भी वो आपकी क्या होती है, कहीं भी जाते हैं किसी के यहाँ एलोवेरा लगी होती तो हम वहाँ से स्टेम उसकी ले आते, घर में सॉइल में ग्रो करते हैं एंड दैट जनरेट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। क्लियर। नाउ द टर्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है, सी ये आपका मेन टॉपिक आएगा 9th में जब आप टिश्यूज पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू ना एनिमल टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब कोई भी चीज़ जिस जगह पे प्लांट ग्रो कर रहा होता है वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। It is responsible for again and again divide the cells in these tissue again and again divide and they grow the new individual। हम इतने छोटे से पैदा होते हैं, हमारे अंदर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है हमारे सेल के अंदर, हम बाहर से तो कुछ ऐसा नहीं हमने मिट्टी इट्टी लगा ली हम ग्रो हो गए। कैसे ग्रो होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं एंड द डिवाइड एंड दैट वी आर कंटिन्यूअसली ग्रो, हमारी हाइट इसीलिए बढ़ती चली जाती है, छोटे से होते हैं फिर हमारे कंटिन्यूशन लाइफ के अंदर क्या हो रहे हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। सो दैट इज द डिवीजन। और वैसे प्लांट्स में ये आपका पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहाँ पे भी आपकी ग्रोथ हो रही होती है, जैसे रूट की टिप हो गई, आपकी जो न्यू बड्स निकलती हैं जहाँ से न्यू स्टेम निकलती है, फ्लावर हो गए, सब में कौन से टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देन आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव, मतलब आर्टिफिशियल मेथड्स मतलब जो हम अडॉप्ट करते हैं, मीन्स ह्यूमन मेड मेथड्स हम क्या क्या कर सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। सो ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग मीन्स जैसे आप एक पिंक कलर का रोज ले, उसमें ग्राफ्ट करके ऊपर मतलब रेड कलर का रोज ले, ऊपर वाइट कलर का रोज लगा दे, दोनों आप जब ग्राफ्ट कर देंगे, सी हाउ वी आर ग्राफ्टिंग, आप इसमें क्या करते हैं, एक जो आपकी रूट की तरफ से आपकी जो स्टेम का पार्ट आ रहा है दैट इज नोन एज स्टॉक, हो सकता है ये रेड कलर का आपने लिया, ऊपर से आप एक दूसरा लीजिए जिसको हम साइन कहते हैं, वो आपका वाइट कलर का होगा। जब आप इसको ग्रो कर देंगे तो इसके ऊपर जो भी नई स्टेम निकल के आएगी वो क्या होगी, दोनों कलर्स का मिक्सचर होगी। क्लियर। सो दोनों कलर्स के मिक्सचर से हम क्या कर सकते हैं, एक नया इंडिविजुअल को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज ग्राफ्टिंग, वी जस्ट मिक्स द टू स्टेम्स, हम क्या कर सकते हैं, टू स्टेम्स को मिक्स कर सकते हैं। इसका भी वीडियो आपको उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, गो एंड वॉच, आपके बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं उसमें आप देखिए आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। इवन यू कैन ग्राफ्ट, आप क्या कहते हैं, टोमेटो है ना, ब्रिंजल प्लांट, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ग्राफ्ट होके एक ही प्लांट में आपके दोनों प्लांट्स ग्रो होने लगेंगे। क्लियर। ग्राफ्टिंग कैन बी वेरी यूजफुल बिकॉज इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम कई करेक्टरिस्टिक को, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी और डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी, सी आपकी क्या है, आपने हाई डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी और हाई यील्डिंग, मतलब हमारे पास एक पेड़ है जिसमें डिसीजेस नहीं होती हैं, एक पेड़ है जिसमें क्या बहुत हाई यील्डिंग, मतलब उससे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स निकल के आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो जो नया पेड़ बनेगा उसमें क्या हो जाएगी, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी मिक्स हो जाएंगी। देन कटिंग, कटिंग क्या है, हमारा एक जैसे रोज है, रोज की आप स्टेम्स की जितनी कटिंग्स बनाएंगे और जितनी जगह लगा देंगे वो अपने आप में क्या हो जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल में जनरेट हो जाएगा। तो कटिंग मीन्स वी जस्ट कट द स्टेम्स ऑफ द प्लांट एंड वो क्या हो जाते हैं, जिसमें कि आपके बड्स होने चाहिए, बड्स का मतलब क्या होता है, जहाँ से न्यू इंडिविजुअल आपकी स्टेम्स और लीव्स निकल के आती हैं। क्लियर। सो उसमें आपको वो लगा देंगे वहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे, न्यू इंडिविजुअल में जनरेट हो जाएगा। सेकेंड इज योर लेयरिंग, लेयरिंग का मेथड क्या होता है, जैसे आपने उसमें क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी रनर्स में आपने देखा था,
ये था स्ट्रॉबेरी रनर्स में हमने यही मेथड देखा था। हम अगर स्टेम पार्ट को नीचे क्या कहते हैं, अगर सॉइल के नीचे डक कर देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग मेथड। और वो क्या हो जाएगा, ये हमारा पेरेंट प्लांट था, ये हमारा न्यू इंडिविजुअल की तरह हमारा जनरेट हो जाएगा। क्लियर। नाउ टिश्यू कल्चर क्या है, हम प्लांट के किसी भी टिश्यू से, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने पढ़ा था, सो अगर हम प्लांट के कोई भी पार्ट को लैब में ग्रो करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका पूरे प्लांट की तरह आपका ग्रो हो जाएगा। देन हम क्या कर सकते हैं, उन जितने इंडिविजुअल प्लांट्स हमारे उसमें से जनरेट हुए हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रॉम अ सिंगल टिश्यू ऑफ अ प्लांट वी कैन जनरेट द मेनी प्लांट्स इन द लैब ओनली, जहाँ हमें सॉइल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनके पास क्या होता है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम होता है जिसमें कि सारे के सारे हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। सो इसमें क्राइस्थम, ऑर्चिड्स, एस्पैरेगस, ये सब एग्जांपल्स आप याद रखिए जिसे हम इंडिविजुअल कर सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस हमारे क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, ये क्विक मेथड है। क्विक मेथड कैसे है, हमें रोज ग्रो करना है। अब हम उसमें क्या कहते हैं, रोज का प्लांट इतने सारे लगाएंगे, सीड्स लगाएंगे रोज के, तो क्या है, हम उसको क्या कर सकते हैं, जो हमारा रोज का प्लांट ग्रो हुआ, हमने उसकी स्टेम्स को 10 जगह लगा दिया, उसकी स्टेम को ही कट करके, तो वो सीड से पहले जर्मिनेट होगा फिर ग्रो करेगा। इससे अच्छा क्या है, हमने स्टेम्स लगा दिए, वो हमारा जल्दी मेथड ग्रो हो जाएगा। क्लियर। सो दिस इज अ पोटैटो, जैसे पोटैटो सीड से ग्रो करने की जगह हमने उस पोटैटो को लगा दिया जिसमें आईज थे, तो उस आई वाले के क्या है, जितने इंडिविजुअल होंगे वो सारे के सारे हमें क्या होने लगेंगे, नए इंडिविजुअल में ग्रो होना। जैसे अनियन, अनियन के हमने पीसेस किए, जितनी जगह हमने पीसेस उसके लगा दिए उसमें क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल जनरेट हो। सीड से कोई भी चीज़ ग्रो होती है तो वो क्या होती है, इट टेक्स टाइम टू ग्रो। वो पहले जर्मिनेट होगी, उसमें प्लूम्यूल रेडिकल निकलेंगे, आपके क्या कहते हैं उसमें टाइम लगता है, और उसमें क्या है, सक्सेस रेट भी कम होता है। इसमें क्या है, आपके सक्सेस रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। अदर एडवांटेजेस क्या हैं आपके, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द प्लांट। अब जैसे हमने कोई नया पेड़ बनाया, ठीक है, जिसमें कि हमने बहुत सारे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हमने दो इंडिविजुअल्स मिला दिए, जो एक हाई यील्डिंग है और एक आपका डिसीज रेजिस्टेंट है, तो जो ये नया पेड़ बना है, हमको बहुत सारे पेड़ों में ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी, ग्राफ्टिंग। तो हम क्या करें, हमने जो एक नया इंडिविजुअल बनाया और उससे जो नया निकल रहा है पेड़, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज, हम उसी की स्टेम को कट कर करके अलग अलग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जितनी वो हमने नई स्टेम्स लगाई हैं उस वाले नए पेड़ की, तो सारे के सारे क्या होंगे, इसमें सारी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। क्लियर। नेक्स्ट, लेस अटेंशन, इट रिक्वायर्स लेस अटेंशन बिकॉज सीड्स को हमें जर्मिनेट करना पड़ता है, उसको सारे कंडीशंस देनी पड़ती हैं। ये हमारी ग्रोन प्लांट्स हैं, तो इनको हमें ग्रो करने के लिए लेस अटेंशन देना पड़ता है एज कम्पेयर टू इट, क्योंकि वो हमारे पहले से उसमें रूट्स जनरेट होंगे, वो अपने आप में न्यू इंडिविजुअल में जनरेट होने लगेगा। क्लियर। न्यू वेराइटीज़, जैसे हमने कहा ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग करके हम न्यू इंडिविजुअल्स को जनरेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, अनडिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक, मतलब जैसे पेरेंट में कोई एक डिसीज़ हो तो हम उसके जितने इंडिविजुअल बनाएंगे उन सब में वही डिसीजेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो ये क्या है, अनडिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स भी उतनी ही सारे प्लांट्स में हमें दिखाई देगी। ठीक है। वल्नरेबल टू डिसीज़ होते हैं, मतलब अगर एक में डिसीज़ है तो सभी में डिसीज़ होगी। देन मेन वही है कि डिसीजेज आपके मतलब ट्रांसफर अगर पेरेंट बॉडी में है तो जितने इंडिविजुअल्स होंगे उनमें सब में होगी। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट रिक्वायर्स टू पेरेंट्स। क्लियर। टू पेरेंट्स कौन कौन से, एक आपके मेल, क्या कहते हैं, मेल एंड वन फीमेल। ईच पेरेंट प्रोड्यूसेस वन रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल को क्या कहते हैं, गैमेट, इट इज नोन एज गैमेट। क्लियर। तो मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, या मेल क्या कहते हैं सेल को क्या कहते हैं, स्पर्म, और फीमेल प्रोड्यूसेस ओवम, क्या कहते हैं, एग सेल और ओवम। क्लियर। सो sexual reproduction involve two parents, male parent and female parent। फीमेल गैमेट क्या होता है, एग सेल और ओवम, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म। क्लियर। नाउ दे फ्यूजेस, अब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जो आपके सिंगल सिंगल सेल है वो फ्यूज करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है दुनिया में वो किससे शुरू होता है, एक सिंगल सेल से। पहला सेल आपका कौन बनता है, जब आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाते हैं, आपके एक सिंगल सेल को। दिस सिंगल सेल इज नोन एज योर जाइगोट, इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ क्या है हमारा जाइगोट। नाउ
द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जो फ्यूजन है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। सो मेल एंड द फीमेल गैमेट फ्यूजेस टुगेदर by the process of fertilization and they produces a single cell known as zygote। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है दुनिया में, कैसे बनता है? एक सिंगल सेल से बनता है। उस सिंगल सेल में आपके पेरेंट्स की भी, आपके मेल की भी करेक्टरिस्टिक होती है, फीमेल। जैसे आप भी हैं, आप कुछ कुछ अपनी मदर की तरह लगेंगे, कुछ कुछ अपने फादर की तरह। तो ऐसे करेक्टरिस्टिक दोनों से आए होंगे जो आपके अंदर इस सिंगली इन्वॉल्व होंगे। यस, सो द करेक्टरिस्टिक फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। और उस सिंगल सेल, पहले सेल को क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हमें सेक्सुअल पार्ट पता है। सेक्सुअल पार्ट हमारा क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर। ओके, नाउ अब अगर हमारे फ्लावर में दोनों पार्ट्स, मेल एंड द फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल, दे आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट्स। क्या बोलते हैं हम? हर्माफ्रोडाइट्स और कंप्लीट और बायसेक्सुअल फ्लावर। इफ अ प्लांट हैव बोथ मेल एंड द फीमेल क्या कहते हैं, पार्ट्स इन द सेम फ्लावर, इट इज नोन एज योर हर्माफ्रोडाइट और कंप्लीट और बायसेक्सुअल फ्लावर्स। क्लियर? अगर एक ही प्लांट में सिर्फ या तो मेल है या फीमेल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर। क्लियर? दीज आर नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर। क्लियर? नाउ दिस इज अ सिंगल स्ट्रक्चर। आपको ये, आपको क्या कहते हैं, गुड़हल का फूल सबने देखा होगा, उसी की तरह का आपका फूल है। नेक्स्ट, सो आपके ये क्या है? जो आपको कलरफुल पार्ट दिखाई देता है वो क्या है? पेटल्स। आपके जो मेल पार्ट होता है वो क्या होता है? आपका एंथर। दिस इज योर एंथर। अब वो नीचे आपके जिस स्टेम से जुड़ा होता है उसको कहते हैं फिलामेंट। टुगेदर द मेल पार्ट इज नोन एज स्टेमन। क्लियर? उसको टुगेदर क्या बोलते हैं हम? स्टेमन बोलते हैं। क्लियर? नाउ फीमेल पार्ट में आपके क्या क्या चीजें होती हैं? फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल एंड टुगेदर दे आर नोन एज कार्पेल। टुगेदर हम क्या बोलते हैं इन्हें? कार्पेल। क्लियर? टुगेदर दे आर नोन एज कार्पेल। जितना भी आपका ये क्या कहते हैं फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, इन सबको एक साथ बोलते हैं हम कार्पेल। क्लियर? सो दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज योर स्टाइल एंड ये आपकी ओवरी है। ओवरी के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर? नाउ सेपल्स क्या होते हैं? जब आपके बड फॉर्म में होता है, जब आपने देखा होगा फ्लावर की कली निकलती है, तो जब वो बड फॉर्म में होती है तो क्या होती? ग्रीन कलर से आपके कवर्ड होती। तो उसी ग्रीन कवर को क्या बोलते हैं हम? सेपल्स बोलते हैं। क्लियर? थैलेमस क्या है? आपका बेस ऑफ द फ्लावर, जहाँ क्या है? आपका बेस ऑफ द फ्लावर। पेडिसल क्या है? इट इज द स्टॉक बाय विच द फ्लावर इज अटैच टू द स्टेम। क्लियर? वो आपके क्या है? पेडिसल है। नाउ सो स्टेमन इज जो स्टेमन प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या है? आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि यू रिक्वायर अ मेल सेल, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट फ्लावर में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं आपके? पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? So these are your pollen grains. These are the male reproductive cells. Clear? Male reproductive cells होते हैं जिनको क्या होता है? आपको फीमेल एग सेल तक आपको जाना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। Now what is pollination? Pollination is the transfer of the pollen grains from the stamen to the stigma. कहाँ जाना होता है? स्टेमन से स्टिग्मा पे। मतलब हमारे पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट है? इस एंथर पे प्रेजेंट है। हमारे पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट है? इस एंथर पे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हमारे पॉलन ग्रेन्स। अब इन पॉलन ग्रेन्स में हमारा क्या है? इन पॉलन ग्रेन से इसको कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। कहाँ जाना है? स्टिग्मा पे जाना है। क्लियर? इन pollen grains को यहाँ से, द ट्रांसफर ऑफ द pollen grains फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब अगर हमारा फ्लावर, मतलब हमारे फ्लावर में, इस फ्लावर में जो हमारा मेल है वो इसी फीमेल पे जाता है, इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब दिस इज योर फ्लावर, अगर इसके pollen grains इसी के ऊपर जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर यही फ्लावर इसके pollen grains किसी दूसरे पे जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? It is known as your
क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर, दिस इज नोन एज योर क्रॉस पॉलिनेशन. यू कैन सी दिस डायग्राम. अगर ये एंथर आपके इसी पॉलिनेशन इसी पे जाते हैं तो दिस सेल्फ पॉलिनेशन. अगर ये दूर जाते हैं तो दिस इज नोन एज योर क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर. सो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमेन. और ये आपका जो ये एंथर है, एंथर से कहाँ जाने होते हैं, स्टिग्मा पे. क्लियर. नाउ इंसेक्ट पॉलिनेशन. अब क्या है, पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं. मीन्स पॉलिनेशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ एजेंट्स चाहिए. सी, विंड, वाटर, इंसेक्ट. अब मतलब कि सी, जैसे आपको सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो वो पॉलन ग्रेन तो बगल में है, उसने अपने इंडिविजुअल को उसी पे स्टिक कर दिया. क्रॉस पॉलिनेशन करना है मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाना है, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना है, तो उसको कोई ले जाने के लिए कोई एजेंट होना चाहिए, पॉलिनेशन के लिए एजेंट होना चाहिए. सो पहला क्या है, इंसेक्ट. इंसेक्ट में जैसे हो गई बर्ड्स, आपकी क्या कहते हैं फ्लाइज हो गई, जितनी भी फ्लाइज होती हैं आपकी, क्या कहते हैं मधुमक्खी, ये सब जितनी भी होती हैं वो क्या हो जाती हैं आपकी इंसेक्ट में आ जाती है. इंसेक्ट जैसे कि अब मधुमक्खी को क्या है, वो फ्लावर में आ रही है, द फ्लाई इज कमिंग फॉर द नेक्टर. फ्लावर उसे क्या दे रहा है, नेक्टर. वो फ्लावर के पास अपने किसी मतलब से ही आ रही है, तो वो क्या मतलब है उसके पास, वो उसको नेक्टर दे रहा है. अब जब वो मधुमक्खी उसके ऊपर बैठेगी आगे, द क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उसके ऊपर बैठेगी इंसेक्ट, तो उसके जितने भी आपके क्या कहते हैं जो आपके पॉलन ग्रेन्स है वो उसकी विंग्स पे क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे. और वो सारे स्टिक होके जब वो दूसरे पेड़ के पास नेक्टर लेने जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, वहाँ जब उड़ के जाएगी तो उसके ऊपर वहाँ पे वो गिर जाएंगे जब वो बैठेगी. सो दिस इज हाउ द इंसेक्ट इज हेल्पिंग. जब एक पेड़ पे आपके कोई भी फ्लाई बर्ड आके बैठती है नेक्टर लेने के लिए, तो उनके विंग्स में वो स्टिक हो जाते हैं. जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाके बैठती हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे जाके उस पर गिर जाते हैं. क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट, सो इसीलिए जो आपके कलर मतलब जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, जिससे कि आपके किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं. विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, हवा चलती है अपने आप, वो एक जगह से दूसरी जगह आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं. क्लियर. एक इसमें ये है आपका, जो भी आपके क्या कहते हैं विंड पॉलिनेशन के हेल्प से आपके ट्रांसफ़र होता है, वो क्या होते हैं, उनके पास लार्ज पेटल्स होती हैं. एब्सेंस ऑफ द लार्ज पेटल मतलब जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो उतनी बड़ी नहीं होती. एंथर एंड द पिस्टल रिमेन एक्सपोज टू द विंड. अब उनकी अगर पेटल्स बहुत बड़ी होंगी और एंथर और स्टिग्मा को कवर करके रखेंगी तो ट्रांसफ़र विंड के उससे कैसे होगा, तो उनकी पेटल्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिससे कि जो आपके एंथर से पॉलन ग्रेन से वो ईजिली आपके वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र हो सकें. क्लियर. जैसे ये कि कॉर्न हो गए, वीट हो गए, ग्रासेस हो गए, वो किस पे डिपेंड होते हैं, वीट पॉलिनेशन पे. क्लियर. नाउ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट. फ्लावर में मेल गैमेट कौन है, पॉलन ग्रेन्स. फीमेल गैमेट कौन है, एग सेल. आपको क्या करना है, उस एंथर से उस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे जाना है. स्टिग्मा के बाद आपको क्या जाना है, आपके ओवरी के अंदर जाना है. क्लियर. सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन क्या हो रहा है, जैसे कि आपका पॉलन ग्रेन जो आपका यहाँ पे स्टिग्मा पे, ये दिस इज जो पॉलन ग्रेन, ये आपके स्टिग्मा के ऊपर जब आपको आ जाता है तो अब हवा चल रही है तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आपके उसके ऊपर आएंगे. जब तक उसको अपने क्या कहते हैं स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन नहीं मिलता, वो क्या करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है. जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या कर लेगा, वो पॉलन ग्रेन एक पॉलन ट्यूब जनरेट करता है, जो कि क्या करेगा, ओवरी के अंदर तक जाता है. ओवरी के अंदर उसको कहाँ जाना है, एग सेल तक जाना है. क्लियर. एग सेल के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन. व्हेन दे विल फ्यूज टुगेदर दे विल फर्टिलाइज. क्लियर. जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या होते हैं आपके सेपेल्स, स्टेमन, मतलब कि जितने अनवांटेड प्लांट्स हैं, जितने कि आपके सेपेल्स हो गई, पेटल्स हो गई, ये सब सारी की सारी क्या हो जाती हैं, सारे के सारे फॉल ऑफ हो जाते हैं. क्लियर. ना अब क्या है, ओव्यूल्स क्या करते हैं, सप्लाई द फूड. आपके अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से जब आपके क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग सेल आगे जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है उसको क्या करते हैं, फूड के सप्लाई करते हैं. क्लियर एवरीवन. ना अब यही जो आपका सीड, जो आपका ओव्यूल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी जो ओवरी है वो पूरी की पूरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. दैट ओवरी कन्वर्ट्स इनटू अ फ्रूट. तो उस फ्रूट में क्या होता है, फ्रूट के अंदर जितने भी आपके ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके सीड्स में. क्लियर. सो द ओवरी कन्वर्ट्स इनटू द fruit and those ovules convert into the seeds.
क्लियर एवरीवन। तो उसमें जितने भी सीड, जैसे आप गुआवा खाएंगे तो उसके अंदर सीड्स होते हैं, आप क्या कहते हैं एप्पल खाएंगे, एप्पल के अंदर आपके ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, वो सब क्या है आपके, ये सब आपके सीड्स है। क्लियर। सो द ओवरी स्वेल्स एंड बिकम्स फ्रूट, ओवरी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, और ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके सीड्स में। क्लियर। नाउ डिस्पर्जल ऑफ द सीड, डिस्पर्जल ऑफ द सीड का मतलब है कि आपके सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह जाके गिरने, मतलब आपको स्प्रेड करने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं उसको कहते हैं हम डिस्पर्जल ऑफ सीड। जैसे आपके पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए एजेंट से आप इंसेक्ट के विंग्स के हेल्प से हो जाता है, विंड पॉलिनेशन हो जाता है, वाटर पॉलिनेशन हो जाता है, सब क्या करते हैं, इससे हेल्प करते हैं। वैसे ही सीड को, जो आपके फ्रूट के अंदर की सीड है वो क्या है, सीड इज़ अ न्यू इंडिविजुअल। आप घर लाके किसी भी चीज़ को ग्रो करते हैं, किसी ने कभी धनिया या मेथी ग्रो की हो, क्या करते हैं हम, मेथी की सीड्स ही तो उसमें डाल देते हैं, या धनिया की सीड सॉइल में डाल देंगे तो न्यू इंडिविजुअल है। तो वो सीड क्या है, अपने आप में एक न्यू इंडिविजुअल है। क्लियर। सो उस सीड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें क्या क्या हेल्प करते हैं। क्लियर। नाउ अब जैसे फॉरेस्ट में आप एक क्या कहते हैं बात करें, फॉरेस्ट में अगर आपकी सीड, जैसे एक मैंगो का पेड़ है, उसमें सारे के सारे फ्रूट जो है वो कंज्यूम नहीं हुए, सारे के सारे नीचे गिर गए, तो वो एक ही जगह पे सारे न्यू इंडिविजुअल फिर ग्रो होने लगेंगे। तो उससे क्या है, हमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो सीड है हमारे, वो ड्राई होने के बाद वो क्या हो, दूर दूर जाके गिरे, जिससे उनको लाइट और क्या कहते हैं सनलाइट मिल सके, जिनको प्रॉपर स्पेस ग्रो होने का मिल सके। सब एक ही जगह फॉल ऑफ होके गिर जाएंगी। जब फ्रूट्स आपके ड्राई करेंगे तो क्या करेंगे, अपनी जगह के लिए कॉम्पिटिट करेंगे। क्लियर। नाउ सो पहला क्या है, विंड। जैसे कि कॉटन की सीड्स होती है, कॉटन की सीड्स क्या होती है, वो जब आपके क्या कहते हैं सीड्स हैं, वो क्या करेंगे, हवा के द्वारा इधर उधर जाके उड़ जाएगी, तो जहाँ जाके उनको फेवरेबल कंडीशन और सॉइल मिल जाएगी, वो वहाँ जाके आपका ग्रो होने लगेगा। क्लियर। वाटर, वाटर में जैसे आपके कोकोनट हो गया, कोकोनट क्या है, पानी की हेल्प से जहाँ ग्रो फैलता चला जाएगा, वो जहाँ जाके उसको सॉइल और वो मिलेगा, वो जाके नया इंडिविजुअल में जनरेट हो जाएगा। देन एक्सप्लोजन ऑफ द फ्रूट, एक्सप्लोजन कैसे आपका होता है, आपका एक है एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा भी आपका होता है। जैसे एनिमल्स लाइक जेंथियम फ्लावर कैसे होता है कि क्या कहते हैं, अगर जैसे कोई फरी एनिमल है, जैसे आपका कोई भी मंकी हो गया, या आपके कोई भी फरी एनिमल किसी भी सीड के पास जाता है, तो उसके सीड में वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं सीड्स, और वो वहाँ जा कहीं और जाके वो बैठेगा तो वो क्या हो जाएंगे, सीड्स वहाँ पे फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो सीड्स जहाँ पे जाके गिरेंगे वो जाके क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। जैसे मैंगो का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि मैंगो जैसे एक बंदर है वो एक जगह खा रहा है, वो हो सकता है एक पेड़ से तोड़ के कितनी दूर जाके तीसरे चौथे पेड़ पे बैठ के खा रहा है, और उस सीड को उसने वहां गिरा दिया, तो वो क्या हुआ, वहां जाके जहाँ पे उसको मिट्टी मिलेगी वो वहां जाके ग्रो होने लगेगी। एक्सप्लोजन ऑफ द फूड, जैसे जर्मेनियम, बाल्सम, पी, इन सब में क्या मेथड होता है, इनका जो फ्रूट होता है वो फट जाता है, तो जब वो फट जाता है फ्रूट, तो उसके अंदर की जितनी भी सीड्स होती हैं वो जहाँ जहाँ पे फैल जाती है, उनको सॉइल मिलेगी, तो वहाँ पे वो ग्रो होने लगेंगे। जर्मिनेशन ऑफ द सीड, जर्मिनेशन ऑफ द सीड आपको क्या बताया मैंने, जो आपका सीड है वो अपने आप में एक नया इंडिविजुअल है। आपने पेड़ घर में भी उगाया होगा, तो वो क्या होता है, आप यहाँ पे डायग्राम देखें क्या है, सबसे पहले आपने सीड डाली, उसमें से क्या निकल के आएंगे, आपके रेडिकल और प्यूम्यूल्स। रेडिकल और प्यूम्यूल क्या होते हैं, प्लूम्यूल इज द स्टेम पार्ट, रेडिकल इज द रूट पार्ट। आपके प्लूम्यूल और रेडिकल्स आपके जनरेट हो जाएंगे, जिससे कि आपके रूट पार्ट बन के आएगा और स्टेम पार्ट बन के आएगा। क्लियर। सो जर्मिनेशन ऑफ द सीड क्या होती है, सबसे पहले जर्मिनेशन में आपको पानी देना होता है, उनको क्या कहते हैं क्या कहते हैं, प्रॉपर उसको स्पेस देनी होती है, प्रॉपर एंजाइम्स देने होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके रेडिकल और प्लूम्यूल, याद रखिएगा। सो प्लूम्यूल इज द स्टेम पार्ट, रेडिकल इज द रूट पार्ट दैट जनरेट्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट, जो आपके रूट और स्टेम को जनरेट करते हैं। क्लियर। सो दिस वाज योर होल चैप्टर। थैंक यू क्लास।